15 डेज के प्रोग्राम में एक मैडम ने बहुत अच्छे से स्टोरी बताई थी, बहुत अच्छे से स्टोरी बताई थी। कुछ तो भी नेल्स के बारे में स्टोरी थी। नेल्स दैट नेल्स नो वी हैंग एनीथिंग ऑन दैट। सो उसके बारे में स्टोरी थी और मैं पूरी स्टोरी सुना। मुझे समझा कुछ नहीं, सिर्फ वो नेल जो है वर्ड उतना ही समझा था। लेकिन उसके बाद में मुझे लास्ट में मुझे लगा कि नेल्स जो है हमारे, ये नेल्स के बारे में बात हो रही है। Hello friends and welcome to the podcast interview series that I have recently started. This one being the first podcast interview series, and I have a very amazing guest with me, none other than Mr. Ashish Kawale. Hello, Okay. hi. So Ashish has been working into the education sector since a couple of years, and let's welcome Ashish. So hi Ashish, how are you? Thank you so much for inviting me for this podcast, and yeah, I'm fine. Yeah, thank you so much. So Ashish, so friends, I'll be telling you that this podcast series could be in any language like Hindi, English, Marathi, whatever the medium is. But you know, information flowing, the gathering of information is not limited to boundaries of the people's caste, creed, religion, and all those things. So our today's podcast would be either in English, Hindi, or Marathi, whatever the existing flow of our interviewer and interviewee is. So we might interact in any other local language as well. And so let's welcome once again Mr. Ashish Kawale. So how are you, Ashish? Thank you so much. Thank you so I'm much. fine. Yeah. And yeah, as you have mentioned in introduction that I am working in the education sector. So I am working as a teacher. So I have started taking tuitions from my graduation actually. So after that, recently you can say from January I'm doing a professional, means I'm a professional teacher now. I'm working in a school. So yeah, I'm working in a school, but teaching to junior college. Okay. Yeah. So friends, the reason that you know why I have chosen Ashish as to be as the first guest, you know, is I have been observing him since a lot of years, and I personally feel that his connection with the people from the ground or the local people is extremely nice as compared to people I have seen since many years. So that reason we are considering, and that's why I feel Ashish is the most suitable person for starting our first podcast series. And so the first question to Ashish would be, Ashish, what thing that you first see in people that you easily connect? मैंने बहुत easily observe किया है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति से, कोई वो बड़ा रहे, छोटा रहे, बुजुर्ग रहे, बच्चा भी रहे, आप उनसे बहुत इजीली कनेक्ट कर पाते हो। तो ये आप मतलब कैसे कनेक्ट करते हो वो लोगों से, और आप कौन सी उनकी क्वालिटी देखते हो, या आपकी कौन सी क्वालिटी उनको इतनी अच्छी लगती है कि आप जल्दी उनके साथ फ्रेंड्स या कलीग्स बन जाते हो? Yeah, so nice question. I can say. So आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि जो अच्छा बात करता है, जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा स्पीच देता है, उसी के प्रोग्राम में, या फिर जो अगर नेता होगा, कोई अच्छा बात करता है तो उसके प्रोग्राम में, उसकी सभा को ज़्यादातर गर्दी होती है, ज़्यादातर लोग आते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने मतलब एग्जाम्पल भी मैं देना चाहूँगा कि राज ठाकरे आप लोगों ने देखे होंगे, उद्धव ठाकरे नहीं है उतने, लेकिन बाला साहब ठाकरे आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये लोग जो है, इनकी सभाओं को ज़्यादातर गर्दी दिखती है, और गर्दी इतनी तादाद में होती है कि लोग गिन नहीं पाते, इतनी ज़्यादा गर्दी। तो वो क्यों होती है? क्योंकि वो अच्छे ओरेटर हैं, वो अच्छे बात करते हैं, वो अच्छे कम्युनिकेट करते हैं। तो अच्छा कम्युनिकेशन मतलब क्या? सो आगे वाले को, जो आपके सामने जो पर्सन बैठा है, आप उसके साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर बात करेंगे तो उसे अपनापन फील होना चाहिए, ऐसा मेरा भी रवैया रहता है लोगों के साथ कनेक्ट करने का। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि अभी मैं अगर ट्रेन से जा रहा हूँ, सो इफ आई एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, सो आई विल स्टार्ट कम्युनिकेटिंग इन देयर लोकल लैंग्वेज फर्स्ट, वेदर ही विल मीन्स, अगर वो गुजराती है, अगर वो तेलुगु पीपल आर देयर, कन्नड़ा, तमिल, जो भी लैंग्वेज है, बांग्ला से है समझो, तो मैं स्टार्ट करता हूँ कन्वर्सेशन की उनकी लैंग्वेज में उनको कनेक्ट कर पाऊँ। सो लैंग्वेज इज द फर्स्ट थिंग दैट कनेक्ट्स पीपल, ओके।
So yeah, so as you start talking in their language, they feel that कि ये हमारा फर्स्ट टाइम लोगों ने इंडिया में ऐसा देखा है. एक्चुअली अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदी में ही बात करते थे, लेकिन जो ज़्यादा कनेक्ट कर पाए हैं वो है नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो हिंदी में बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि कॉमन मैन हमारे से कोई तो भी एक आया है और वो पीएम के कुर्सी पे बैठा है. तो दैट इज़ द थिंग कि लोग कनेक्ट कर पाते. मुझे भी यही बात लगती है आशीष कि आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि एक किताब है जिसका नाम है डेल कार्नेगी की किताब है जिसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस अदर्स. सो मेनी टाइम्स मैं भी कम्युनिकेशन में मार खाता हूँ. तो जनरली मैं किसी से इतना इजीली कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ जितना आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यू वुड बिकम अ पीपल प्लीजर. बट आफ्टर आई रेड द बुक मुझे भी पता चला कि आपको लोगों की इंटरेस्ट की बातें उनसे जाननी पड़ेगी, उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक देम कलीग्स और योर फ्रेंड्स. करेक्ट. आई वांट टू टेल यू कि अगर आप आगे वाले के मन में क्या चल रहा है, ये अगर आप सिचुएशन पढ़ ले, अगर उनके चेहरा, अगर फेस रीडिंग आपको आती है, अगर उनका चेहरा पढ़ सकते हैं आप, तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि अगर एक कोई पर्सन टेंशन में है तो आप जाके उनसे सिर्फ, लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनके हित के बारे में या फिर अच्छा कुछ तो भी बात करें. ठीक है, लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब कोई तो भी अगर मुझसे बात कर रहा है तो मेरी फीलिंग शेयर हो उसके साथ. दैट इज द मोटिव ऑफ एनी कम्युनिकेशन. ओके, सो व्हाट इज कम्युनिकेशन? यही होता है कि अगर मुझे कुछ मतलब बताना है तो मैं किसके साथ शेयर कर सकता हूँ, तो ओनली विद दैट पर्सन विच कनेक्ट्स विथ यू. सो अगर आपको टेंशन दिख रहा है, मुझे कोई तो भी आप कोई टेंशन में लग रहे हैं, तो मैं आके अगर वो टेंशन रिलीफ करने का काम करूंगा, वो टेंशन आपके जरिए निकालने का कोशिश करूंगा. आप मतलब आपके मन में वो टेंशन है, लेकिन आप जब वो मुंह पे लाएंगे, आप बोलेंगे, बात करेंगे, शेयर करेंगे, तो उनका टेंशन रिलीफ हो जाएगा. और दैट इज द थिंग कि वो आदमी आपसे खुश हो जाएगा कि या दिस इज द गुड पर्सन एक्चुअली. सो आप अच्छा बात करते हैं, इससे अच्छा सबसे बड़ी चीज है कि आप यू शुड बी अ गुड लिसनर फर्स्ट. हाँ, सो दैट्स रियली नाइस. ओके, और एक बात मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूँगा स्पेशली कि अभी रिसेंटली आप जिस पुराने स्कूल में काम करते थे वहाँ का मैंने आपके फ़ोटोज़ देखे, तो आपका फ़ैन बेस, चाहे वो आपका कलीग्स का हो या फिर वो आपका स्टूडेंट्स का हो, आपका फ़ैन बेस बहुत ही बड़ा है. जनरली क्या होता है कि किसी इंसान का फ़ैन बेस बहुत बड़ा हो तो उसको केटर भी करना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है. तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? मतलब especially how do you cater to your fan base as well as how do you maintain your professional life as well? So मीन्स ये तो पर्सनल बातें हो गई कि ऐसा कुछ जादू नहीं है कि मतलब लोग मुझसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं. हाँ, लेकिन ये देखा है मैंने भी कि बहुत लोग कनेक्ट होते हैं. सो मे बी आई टॉक वेल मे बी, और आई ओपनली टॉक विद देम. They feel frank to share with me anything in their personal life or professional life. So ये बात देखी है मैंने. So अभी आपने जैसे बोला कि टीचिंग आपने पहले स्कूल में मेरा जो मतलब देखा है, फ्रेंड्स जो देखे हैं वो, हाँ, वो ये हर जगह पे होता है. Yesterday only I got a call from one student and he was telling me like कि सर आपकी याद आ गई तो मैंने फ़ोन किया. So before we can say 2 generations before our generation these things were common कि टीचर्स को इतना रिस्पेक्ट मिलता था. अभी इतना टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि बच्चे फ़ोन करते. मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैंने जब वो स्कूल में छोड़ रहा था तब मैंने स्टूडेंट को बता दिया था कि मैं आई कैन बी लिविंग सून. सो बच्चे रोने लग गए थे. तो ये सब सिनेरियो मतलब मैं पहली बार फेस कर रहा था. तो मुझे तब पता चला कि मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया हूँ स्टूडेंट से, और स्टूडेंट रोते रोते हुए मेरे पास आ रहे थे कि सर आप मत जाइए, सर आप बहुत अच्छे टीचर हैं. बीइंग अ टीचर आई स्ट्रांगली फील कि आपको बच्चों के लेवल तक जाना चाहिए. अगर मैं कोई 8वीं क्लास पढ़ा रहा हूँ, 9वीं पढ़ा रहा हूँ, 10वीं 11वीं 12वीं जो भी है, सो उस लेवल पे जाके मुझे उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, उनके लैंग्वेज में. अभी तो आप सिनेरियो चेंज हो चुका है, तो मेरा यही स्ट्रैटेजी था कि सिनेरियो जैसे चेंज हो चुका है कि पहले स्ट्रिक्ट टीचर्स रहते थे. ठीक है, तो अभी आप
स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते बच्चों के साथ। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उनके लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, मतलब वो जो स्लैंग है उस लैंग्वेज में जाके जो स्लैंग में जैसे बात करते हैं उनसे कनेक्ट करने के लिए स्टार्टिंग में इतना करना पड़ेगा। आपको उनके इमोशंस जानने पड़ेंगे, वो क्या फॉलो करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो सब चीज़ों पे मैटर करता है। आपका टीचिंग, आपका बिहेवियर, ये सब चीज़ों पे मैटर करता है, आपका कनेक्टिविटी। तो स्टूडेंट के साथ मैं यही मतलब उनको अच्छा फील होता था। क्योंकि मैं उनका जैसे अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी इंस्टाग्राम चल रहा है समझो, फेसबुक, मुझे पता है कि वो स्टूडेंट मेरे फॉलो करते हैं, तो मैं कुछ मीम्स उठा के उनको पढ़ाते जाऊंगा, तो उससे एक जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ती है और यस वो अच्छे से मतलब कनेक्ट कर पाते हैं स्टूडेंट्स। और दूसरा बात है कि आप मतलब अगर आप अच्छा बिहेव करोगे, उनके साथ अच्छी फ्रेंडशिप करोगे, तो वो अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे और आपका फैन बेस भी अच्छा बनेगा। और दूसरी तरफ आपने टीचर्स के बारे में जैसे बोला कि टीचर्स कनेक्ट होते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ये भी वन ऑफ द रीजन है कि हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। स्पेशली ये जो है जो इंटरव्यू पॉडकास्ट है, हम चाहते हैं कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। सो रिसेंटली आप जयपुर भी गए थे शायद 1 महीना पहले, तो आप क्या हमें जयपुर के कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? So that was a tour organized by school actually. Okay. So actually रोड सेफ्टी के बारे में वो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था और अलग अलग जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है स्कूल का, आई मीन्स रिवील नहीं करना चाहूँगा लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, तो उसकी बहुत सारे इंडिया में स्कूल्स है। सो वो उस स्कूल से बहुत सारे टीचर्स आए थे। सो वर्कशॉप अरेंज किया गया था, एक मुस्कान फाउंडेशन करके है, तो उनकी तरफ से तो रोड सेफ्टी के बारे में वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आपकी ज़िंदगी ही नहीं रहेगी तो आप क्या गाड़ी चलोगे? टीचर्स कनेक्ट फास्ट एंड आफ्टर दैट हमारे एक सर थे, तो पास में ही अलग अलग फोर्ट थे, जैसे नाहरगढ़ था, एक जयगढ़ था और एक आमेर फोर्ट था। तो नाहरगढ़ और जयगढ़ के लिए सर ने हमें ये प्रोत्साहित किया कि सुबह सुबह हम लोग घूमने के लिए जाएंगे, वहाँ पे पैदल जाएंगे। सो वो जो है जयगढ़ पहले दिन हम लोग 4:30 बजे निकले जयगढ़। सो यही जहन में रख के गए कि मतलब 3 दिन का वर्कशॉप है और 9 बजे से 5 बजे तक तो सेमिनार ही रहेगा, फिर आप लोग घूमोगे कब? तो मतलब थोड़ा 2 घंटा अगर जल्दी उठ जाओ आप लोग तो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाओगे। तो हम लोग पैदल निकलते थे, ऐसे मतलब 10-10 किलोमीटर पैदल चलते जाते थे हम लोग। सो वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत है, वहाँ पे मोर ज़्यादा देखे हमने, पीकॉक बहुत ही ज़्यादा देखे। अब जो है हम लोगों का जो वापस का जो सफ़र स्टार्ट हुआ तो बहुत ही भयंकर सफ़र था, क्योंकि हम लोग जा रहे थे, कोई लिफ्ट देने के लिए तैयार नहीं और गर्दी भी कम थी, क्योंकि सनराइज देखने के लिए लोग आते हैं सुबह और चले जाते हैं, और हम लोग पैदल आए थे और हम लोग को 9 बजे सेमिनार अटेंड करना था, तो इट वाज क्वाइट इम्पॉसिबल। सो हम लोग एक जगह पे आके रुके जहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट हो चुके थे, वहाँ पे नीचे से ऑटो बुलाना पड़ा और फिर से ऑटो से जाना पड़ा हमें। So that was quite good experience in Jaipur. So thanks to Jaipur. Quite exhausting as well as amazing experience. Yeah, amazing it was for you all people in Jaipur. Yes. So जैसे कि आशीष आपने बोला कि bonding, connection, whatever it is with human emotions, लोगों के साथ, वैसे मैं भी मानता हूँ कि लोगों के साथ भी, पर किताबों के साथ भी कनेक्शन होना बहुत अच्छी बात होती है। So हम जनरली ये सुनते आ रहे हैं कि leaders are readers, but readers can also become leaders in the future. सो क्या आप इसके पहले जो आपने किताबें पढ़ी है, क्या आप उनके बारे में हमें बता सकते हैं? रीज़न ये है कि मैं किताबों के बारे में क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ में भी किताबों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रह चुका है। जो भी छोटे मोटे सक्सेसेस मैंने देखे लाइफ में, तो किताबों की छोटी मोटी चीज़ों के मैंने लाइफ में इनिशिएटिव लेके उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी और उनके फ्रूटफुल रिजल्ट्स में देख चुका हूँ। तो क्या आप किताबों के साथ आपको जो कनेक्शन है, क्या आप उन सब चीज़ों के बारे में हमें, हमारे दर्शकों को मुझे शेयर करेंगे? ओके, एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी है एक्चुअली, ठीक है। सो आई थिंक फर्स्ट किताब मैंने पढ़ी है, सो दैट वाज द सीक्रेट। ओह। एंड एवरीवन शुड रीड दैट बुक, okay, so that was amazing book. So it will change your perspective to see towards the life, okay.
सो वो किताब आपको देखनी चाहिए। वो आपको एक जरिया बता देती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। आप जो जैसे शाहरुख खान का डायलॉग है कि कितनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, जो है तो पूरी कायनात ने उसे मिलाने की साजिश की। सो सेम एज इट इज विल हैपन टू यू। सो इफ यू मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट समथिंग दैट विल कम टू यू। Okay. It may take some time, but it will come to you. I have personally actually felt that in Okay. my past. I personally felt that, and things comes to you. So Oh. that is the one thing, and I must recommend that book. So everyone should read that Okay. one. So another book I actually read, that was Mrityunjay. It is in Marathi. So yeah, so Shivaji Sawant is writer of that book. So author of that book. Writer and author is the same, no? Okay. And what is the difference between writer and author? ऑथर प्राइमरी राइटर होता है एक्चुअली। Okay. जो राइटर होता है वो एक तो ऑक्सिलरी चीज़ों में उनको राइटिंग के लिए एक तो हेल्प कर सकता है, या राइटर बहुत सारे ग्रुप ऑफ राइटर्स में से एक पार्ट हो सकता है। Okay. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई बुक बना रहे हो, कोई बुक लिख रहे हो, तो मैं आपको एज अ राइटर उसमें हेल्प कर रहा हूँ, तो ये राइटर का एक छोटा सा पार्ट या मायना होता है। Good new thing came to me. The second book was Mrityunjay. Okay. So everyone must read that book also, because the struggle, whatever the struggle, as we know the character Karna from Mahabharata. So what is the struggle? What does the struggle means? You will come to know from that book only. So you should means we are complaining of everything, like मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, so what is the struggle? You will come to know from that book. So you should have read actually Abdul Kalam, APJ Abdul Kalam, Okay. Dr. APJ Abdul Kalam's autobiography, Wings of Fire. Wings of Fire. Okay. That's really nice. Yeah, and I think that books can change your life also. ओके, जैसे कि आशीष इन्होंने बताया कि जैसे कि उन्होंने कुछ बुक्स के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मैं भी ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि मैं भी अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो मैंने भी कुछ ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ी है, पर मैंने जो भी बुक पढ़ी है उसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ हद तक अपनी लाइफ में किया है। तो बात बहुत पुरानी नहीं है, जब भी मैं इंजीनियरिंग में था, सो सेकेंड ईयर में मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ना स्टार्ट किया। तो पहले तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, पर मैंने उसको बार बार पढ़ते रहा। मैं उसको बार बार पढ़ते रहा। उसका लास्ट जो चैप्टर है, जो पावर ऑफ द कॉरपोरेशंस, उस तक मैं पहुंचा हूँ बहुत सक्सेसफुली। और मैं पर्सनली अपने फाइनेंसेस बहुत ही इफ़ेक्टिवली मैनेज करना सीख गया हूँ एट अ मियर एज। सो आई वॉज 19 एट दैट टाइम। सो तब मैं फाइनेंशियली कैसे फाइनेंसेस अपने खुद के मैनेज किए जाते हैं ये सीख गया था। तो जो भी लोग मेरे आसपास रहते थे, तो उनको शायद ऐसा लगता होगा कि ये बहुत रोक झाड़ रहा है, तो इसने ऐसा क्या किया, ये शायद ये बहुत पैसा खर्चा करता होगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पैसा खर्चा करता था, पर मैं अपने फाइनेंसेस को बहुत इफ़ेक्टिवली मैनेज करता था। एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का टूल आता है जो एक्सेल है, ऐसा नहीं कि वो आप ऑर्गेनाइजेशंस में ही देखोगे, अगर आप उसको पर्सनल लाइफ में भी अगर आप उसको यूज़ करोगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स आपको लाइफ में दिखेंगे। दूसरी बुक मैं बताना चाहूँगा वो है द एटॉमिक हैबिट्स। वो सो आशीष, मैं ये देखते आ रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश है बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हुआ है। बहुत पहले के दिनों में ऐसा मैं देख चुका हूँ कि आप बेहद ज़्यादा फंबल करते थे। आपको लगता है ऐसा कि मेरा इंग्लिश स्पीकिंग अच्छा हो रहा है? आपका इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही उम्दा किस्म का हो रहा है, ठीक है। तो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरा बहुत अच्छा है, पर थैंक यू सो मच फॉर कॉम्प्लीमेंटिंग मी। बट क्या आप हमें बता सकते हैं कि मतलब आपने क्या क्या स्टेप्स इसके लिए लिए हैं, और आप क्या हमारे दर्शकों को कुछ गाइडेंस देना चाहेंगे? मुझे अभी भी नहीं लगता है कि इतना मतलब खास मैं बोल पाता हूँ या फिर अच्छे से इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा सा सुधार हुआ है मेरे इंग्लिश में, क्योंकि मैं पहले बहुत ही बुरी तरीके से इंग्लिश बोलता था, ठीक है। पर मुझे ये एक एहसास हुआ है कि जो भी जितने भी आप लोग मतलब अच्छे इंग्लिश बोलने वाले देखेंगे, या फिर
जिनको इंग्लिश अच्छे से बात करना है या फिर इंग्लिश सीखना है, तो मुझे आई स्ट्रांगली फीलिंग, ये मेरा ओपिनियन है कि आप लोगों को अपनी खुद की लैंग्वेज, जो भी रीजनल लैंग्वेज है आपकी, वो अच्छे से आनी चाहिए। अगर जब तक आप लोग अपनी लैंग्वेज अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, आपको थॉट्स जो है वो अपनी लैंग्वेज में अगर आते हैं, आप यू कैन राइट एन एसे, वॉट एवर इट मे बी, इफ यू कैन कम्युनिकेट विथ एनीबडी इन योर लैंग्वेज, अच्छे से अगर कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने लैंग्वेज में, तो ही आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाओगे। मेरा तो एक बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस ऐसे है कि मतलब आगे वाला बहुत सारा, मतलब अगर स्पीच है, स्पीच सुनने के लिए गया मैं, या फिर सेमिनार था इंग्लिश में, अगर वो टोटली इंग्लिश में अगर सेमिनार रहता तो मैं इधर सो जाता था। और दूसरी एक बात है तो मुझे फिर किसी लड़के ने बताया कि नहीं वो स्टोरी ऐसी थी, वो स्टोरी मुझे कुछ नहीं समझी। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि इतना मतलब कुछ भी नहीं समझता था मुझे इंग्लिश। और मैंने फिर ग्रेजुअली इम्प्रूव करना ऐसा स्टार्ट किया कि हम जो लैंग्वेज सीखते हैं वो सुन के सीखते हैं। मतलब हम लोग अगर जब लोग हम लोग मतलब बॉर्न होते हैं, जब से जन्म लेते हैं, तब से हम लोग घर में जब कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, सो यू स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर लिसनिंग इट। सो फर्स्ट स्टेप इज लिसनिंग। सो आपके घर के आजू बाजू में आपकी मम्मी बोलेगी, पापा बोलेगी बाबा मन बेटा बाबा मन, पापा बोल बेटा पापा बोल। सो आप पापा वो बात करना स्टार्ट करते, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप ये है कि आपको मन में जो है, मन में खुद के साथ, अगर आपको इंग्लिश बात करना है तो मन में खुद के साथ वो बात करना पड़ेगा। यू स्टार्ट थिंकिंग whenever I speak और whoever speaks, अगर जो रेगुलर पर्सन नहीं है, जो इंग्लिश में बात रेगुलर नहीं करता है, वो पर्सन आप कभी भी देखोगे तो वो पर्सन बात करते करते आएगा उसके बीच में, ऐसे ऐसे पॉजेस आएंगे। तो वो पॉज क्यों आते हैं? क्योंकि उसकी थिंकिंग प्रोसेस होती है उसके खुद के लैंग्वेज में। अगर मैं मराठी में बोलता हूँ तो वो मराठी में मैं पहले सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करता हूँ अपने मन में, उसके बाद आप इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हो। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, लेकिन उसके बाद ट्राई करते हैं आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। तो इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट लैंग्वेज ओनली इन विच यू हैव टू स्पीक, सो देन इट विल बी वेरी मच कंफर्टेबल टू यू कि आप इंग्लिश में ही मन में आप बात करो खुद से, ठीक है। और उसके बाद आपके जो है सेंटेंसेस वो प्रॉपरली आना स्टार्ट होगी। हाँ, दूसरी बात, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ग्रामर आपको स्कूल में मतलब सिखाया गया होगा या फिर प्रॉपरली ही ग्रामर आना ही चाहिए, इसके बाद ये आता है, उसके बाद वो वर्ब, उसको ये आना ही चाहिए। दिस इज नॉट नेसेसरी। सो आई थिंक लैंग्वेज इज जस्ट टू कम्युनिकेट। सो इतना बड़ा हाइट नहीं करना चाहिए कि यू मीन टू से लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। हाँ, लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। एंड बहुत लोग जो है वो बहुत मतलब शो ऑफ करते हैं कि मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ तो सामने वाला ऐसा नीचे दिखाना। सो दैट इज नॉट द थिंग। फर्स्ट यू स्पीक इन योर लैंग्वेज वेरी वेल, देन यू ट्रांसलेट इट, then it will be, see, it is the simplest way to communicate, like what कि मैं अगर एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उस सेंटेंस का मैं अगर प्रॉपरली अपने लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, उसका प्रॉपरली अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सो दैट विल बी अ मीन्स गुड लर्निंग एक्सपीरियंस, आई कैन से। ओके, सो स्टार्टिंग में आपको ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम जाएगी, पर जैसे जैसे आप माइंड में उसको सिंक करोगे, आप हाँ। इंटरनली आपके माइंड में डॉट्स कनेक्ट करोगे इतना इजीली, तो वो एक फास्ट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस बन सबसे जाएगा। बेस्ट मैं बोलूंगा कि जब भी आप अकेले में हो, जब भी जहाँ पे भी, वॉट एवर इट में भी, मतलब कोई भी प्लेस हो सकती है जहाँ पे अकेले में हो आप, वहाँ पे थिंकिंग प्रोसेस, अगर आपको इंग्लिश सीखना है या फिर आप बोल रहे हो आप कि कोई भी आदत लगने के लिए, हमें तो पता है कि कोई भी आदत लगने के लिए 21 दिन 21 डे हैबिट जो है वो करनी पड़ती है कंटिन्यूसली, दैट देन आफ्टर इट बिकम्स अ हैबिट। सो आपको कोई भी, अगर आप एक जगह पे हैं जहाँ पे अकेले हैं आप, तो ट्राई कीजिए कि आप मतलब अकेले खुद के मन में या फिर खुद से बात करते करते आप इंग्लिश में ही बात करें। अगर आपको इंग्लिश बोलना है या फिर कोई भी लैंग्वेज अगर आपको सीखनी है, तो आपको बेसिक वर्ड्स पहले जानने पड़ेंगे और उसको खुद के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, खुद के साथ बात करना पड़ेगा। आपको सिनेरियोज इमेजिन करना पड़ेगा कि आगे वाला पर्सन क्या बोल रहा है, फिर मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कम्युनिकेट डायलॉग्स जो है वो आपके वही के वही होने चाहिए मन में। Okay, that's really nice, Ashish.
आपने ये जो भी जो इंग्लिश का सिनारियो हमारे दर्शकों के सामने एक्सप्लेन किया, सो हमारी बातचीत वैसे अगर हम नहीं चाहें तो कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी, पर ये जो पॉडकास्टिंग इंटरव्यू का जो एक्सक्लूसिव सिलसिला है ये तो चलता रहेगा दोस्तों। सो मिलते हैं आशीष के साथ अगले सीरीज ऑफ पॉडकास्ट में। सो तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच थैंक यू आशीष। सो मच। थैंक यू। Close your eyes for a minute, close your eyes for a second. I won't change my mind. Water's getting deep now.